Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with the topic of chapter number 1, that is production and inventory management part 3 for standard SYBCom, and the subject is commerce 4. So let's start. This is an image which shows how the production planning and control is to be done. Right? By seeing this image, what you can observe is this is a person, this is a manager, and this is a superior or subordinate who is helping him out to complete that particular task. They are totally planning it, what things they have to do in the future, and they are just controlling the techniques which they may occur while doing the production. Correct? So this, they all are just as a gesture, they are just doing the production, they are just doing the planning of the particular things. This is the meaning of a production planning and control, which I have already taught you in the last two part of this chapter. Let's recap it again. Production planning and control is a predetermined process which include the use of human resources, raw materials, machineries, etc. It means while doing any of the production planning and control, I am making sure I am connected with the human resources, but it means I have to plan for them also. I have to plan for raw materials, so which raw materials, what quality, what quantity I have to take while doing the production things. Next one, that is known as machines, which machineries, which equipments I have to use while doing the production things. So I have to plan each and every step for making only a product. Production planning and control is a technique to plan each and every steps in a long series of a separate operations. It helps to take the right decisions at the right time at the right place to achieve maximum efficiency. If I want to achieve very maximum efficiency, I have to think which quality, which quantity, which at what time, what product decisions. I have to check each and every aspects of a production planning. If I'm selecting any of the wrong things, it might happen my production will not happen good way. Correct? So to remove all such barriers, what I am doing is I am selecting the right product, I am doing in the right decisions. Accept. Why? Because while doing all such thing, it might happen I have to follow a lots of steps while doing it. Correct? So it's very much important to select in a proper appropriate manner to get very good output. Clear? Which already taught you. Again I'm recapping for you. Next topic and the new topic for today, that is steps in production planning and control. The production planning and control mostly follow 5 to 6 steps. So in this we will be learning 6 steps. The sixth step comes under the follow, that's why I have not written that. Though this 5 steps you all have to follow. This 5 step each and every company manager, each and every company follow while doing the production planning and proper controlling of it. Clear? So let's move forward. आगे देखते हैं. The very first one, that is known as routing. Many of say as routing, both are the same, but you can say as a routing one. Routing, by seeing this image, what you can see, this is the route, right? This is the actual production is even happening, and the production is being doing coming from year to year at the proper destination. Proper pathway I am selecting, proper path work I am selecting while doing any of the routing. Correct? The routing is what? A routing is a starting of any of the production planning and control. The very first step, routing can be defined as a process of deciding the path of a work. Correct? I can say this is a path of a work which requires for the sequence of any of the operations. Correct? तो रूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए. अगर प्रॉपर तरीके से मेरा रूटिंग होगा, व्हाट विल हैपन, प्रॉपर तरीके से मेरा काम होगा. दैट कैन बी अ प्रॉपर फुल कैपेसिटी ऑफ मशीनरी मेरा होना चाहिए, प्रॉपर इकोनॉमिक में काम होना चाहिए. मैं रूटिंग में ये भी डिसाइड करती हूँ कि मुझे प्रॉपर अगर फ्लो में काम करना है, प्रॉपर स्मूथ वे में काम करना है, मैं ध्यान में रखती हूँ कि मैं कौन सा बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे में जाके नॉर्मली रूटिंग को मैं हेल्प आउट कर सकूँ. रूटिंग आपको सबसे पहला स्टेप होता है. अगर प्रॉपर रूटिंग ही नहीं होगा ना, मेरा कोई भी काम प्रॉपर नहीं होगा. करेक्ट? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज रूटिंग. नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, दैट इज नोन एज लोडिंग. लोडिंग हमें क्या करता है? लोडिंग इट्स जस्ट लाइक अ टोटल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटिंग थिंग. मैं कितना टाइम मुझे चाहिए वाइल डूइंग एनी ऑफ द थिंग्स, मैं नॉर्मली लोडिंग से हेल्प आउट करती हूँ. और लोडिंग हमें ये भी सिखाता है कि मेरी पर्सन की जैसे मुझे वो भी सिखाता है कि कोई पर्सन की, कोई मशीनरी, कोई
या फिर मैं कोई वर्क सेंटर्स की कितनी कैपेसिटी है वो किस तरीके से काम कर सकता है. सपोज आई वांट टू मेक 1,000 टी-शर्ट एट अ वन टाइम. इफ माई मशीनरी इज़ नॉट एट ऑल गुड और आई डोंट हैव दैट मच रॉ मटेरियल्स, इट माइट हैपन विद इन वन डे के अंदर आई मे नॉट कंप्लीट द 1,000 टी-शर्ट डिमांड. करेक्ट. वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है वो काम को करने करे. तो जब वेन एवर आई एम सिलेक्टिंग एनी ऑफ द रूटिंग थिंग ना, आई हैव टू मेक श्योर फॉर द लोडिंग थिंग्स ऑल्सो. मैं ध्यान में रख रही हूँ कि कौन से टाइमिंग पे क्या क्वालिटी, क्या क्वांटिटी, क्या प्राइस पे, क्या यूनिट्स के अकॉर्डिंग मुझे काम करना चाहिए. और ये भी मुझे ध्यान होना चाहिए मेरे पास में सारी अवेलेबिलिटी ऑफ चीज़ें हैं कि नहीं है. I have taken a demand of 1,000 t-shirts, but many of my laborers are absent on that particular day. Definitely, my work will not complete. Reason for this, because I don't have availability of any of my labor. I don't have that much capacity to do at for individuals. Correct. तो वो ध्यान रखने के लिए मुझे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लोडिंग ज़रूरी हो जाता है. लोडिंग कैन बी यूटिलाइज एज अ प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ में, एंड मुझे बताता है किस तरीके से मुझे काम करना चाहिए. So these are the total two, many steps, 5 steps are there, 6 steps are there. These are the 2 steps which every production planning and control manager, every company used to follow this. Clear? The next stage of production, that is PPC, production planning and control. Third step, that is known as scheduling. हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ से प्रॉपर तरीके से हम लोग उसको स्केड्यूल्ड करते हैं. वी आई एम मेकिंग अ वेरी गुड टाइम टेबल ऑन विच डेट एंड विच टाइम आई हैव टू डिस्पैच अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बट बिफोर डिस्पैचिंग आई एम मेकिंग श्योर प्रॉपर मैं शेड्यूल बना के रखूँ. अदरवाइज अगर मैं शेड्यूल नहीं बनाऊँगी, इट माइट हैपन मेरे को जिस लोगों ने किस तरीके से डिमांड की शायद मैं उसको फुलफ़िल ना कर पाऊँ. तो मुझे एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि ये कंपनी के लिए सपोज़ मंडे है, नेक्स्ट कंपनी के लिए ट्यूसडे है, नेक्स्ट कंपनी के लिए वेडनेसडे, थर्सडे. तो आई एम मेकिंग श्योर कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रॉपर तरीके से मैं कर सकूँ. स्टार्टिंग टाइम एंड नॉर्मल फिनिश टाइम नॉर्मली यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिश टाइम नॉर्मली यहाँ से कर सकूँ, ताकि क्या होगा प्रॉपर प्रोडक्शन का टाइमिंग बना रहेगा एंड हम लोग को मेक श्योर होगा कि किस तरीके से हमें नॉर्मल काम करना चाहिए. क्लियर. So proper maintenance करना objective बहुत important. Other than this, in the schedule time, what happen, the starting activity in the starting time and the ending time of activity used to be happen. I am following proper timetable follow करके अगर मैं काम करती तो क्या होगा, authorization रहेगा and हम लोग उसको काम को कर सकते हैं. ठीक है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर तरीके से मैं स्केड्यूल मेंटेन करूँ, स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम मेंटेन करूँ. क्लियर. This is the third step. The next step for this, that is dispatching. As I said before dispatching I have to follow the routing, I have to follow the scheduling. प्रॉपर तरीके से इसको मैं लोडिंग करूँगी. एंड नेक्स्ट स्टेप, that is dispatching. I cannot do dispatch after routing. Before routing I cannot do it. Dispatch always comes in after all such steps, because dispatch means what, मैं proper एक एक्सेप्टेशन कर रही हूँ, ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर रही हूँ. आई एम गिविंग दैट ऑर्डर्स टू द पर्टिकुलर कंज्यूमर. करेक्ट. तो ऑर्डर को कंज्यूमर को मुझे असाइन करना है. आई हैव टू गिव देम अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्पैच करना पड़ेगा. अगर प्रॉपर तरीके से मेरा यहाँ पे डिस्पैच होगा तो काम मेरा वर्कआउट प्रॉपर तरीके से हो पाएगा एंड मुझे मालूम पड़ेगा कौन सा इंस्ट्रक्शन मुझे फॉलो करना चाहिए. करेक्ट. तो डिस्पैच ऑलवेज शुड बी इन एज पर द शेड्यूल इज़ बिन गिवन बाय द कंपनी. अगर उस तरीके से डिस्पैच होगा, व्हाट विल हैपन, मैं हर पर्सन को, हर एक कंपनी को मैं इंश्योर करूँगी प्रॉपर टाइम पे दे पाऊँ. अगर मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करूँगी ना, मेरा डिस्पैचिंग बिगड़ जाएगा. तो मीन्स ये दो ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमेशा एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है. अगर शेड्यूलिंग रॉन्ग है ना, मेरा डिस्पैचिंग रॉन्ग हो जाएगा. करेक्ट. आई एम नॉट शेड्यूलिंग, मुझे कब देना है, तो आई मे गेट कन्फ्यूज ऑन विच कंज्यूमर, विच कंपनी ऑर्डर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. क्लियर. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर मुझे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके मुझे नॉर्मल डिस्पैच करना चाहिए. डिस्पैच हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मैं जो भी चीज़ें बना रही हूँ, राइट थिंग, राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एंड प्रॉपर कंप्लीशन ऑन टाइम पे होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने आधा अधूरा प्रोडक्ट किसी को बना के दे दिया बिकॉज यू वांट इन अ वेरी अर्जेंट बेसिस, सो आई डिडंट गॉट दैट मच टाइम, तो मैं उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ. तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग. वो यहाँ पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा. मैं बोल सकती हूँ पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा का पूरा कंप्लीट ऑपरेशन होना चाहिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए. क्लियर. दिस इज़ अ डिस्पैचिंग. एज यू सी इन द इमेज ऑल्सो ड्रूम हो रहा है, प्रॉपर तरीके से डिस्पैच हो रहा है मेरा गुड्स. द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ फॉलो अप करना. बहुत से लोग उसको
फीडबैक बोल सकते हो, रेटिंग ले सकते हैं। तो कोई भी कंपनी होती है ना, वंस एवरीथिंग इज़ डन ना, वो प्रॉपर तरीके से रिफरिंग करती है, दे आर मेकिंग श्योर कि प्रॉपर तरीके से मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दे आर जस्ट कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द परफॉर्मेंस विच ऑलरेडी बीन मेड। वो लोग कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर वो करते नहीं तो उससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से करेक्टिव मेजर ले सकते हैं इफ़ समथिंग इज़ वेंट रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर पाथ। करेक्ट, वो एक्टिविटी को काम करने के लिए कुछ चेंजेस करना चाहिए, तो प्रॉपर करेक्टिव मेजर्स के लिए वो लोग फॉलोअप लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलोअप लेना। उससे हमें पता होना चाहिए, इससे हमें पता चलता है व्हाट आर आर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर आर वीकनेसेस। सो आई एम मेकिंग श्योर इफ़ आई डू हैव अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स वेरी गुड, आई कैन बी ऑन दैट थिंग ऑल्सो, मैं उसी पे प्रॉपर रहूँगी। इफ़ आई डू हैव अ वीकनेस इन एनी ऑफ माई थिंग्स, तो ये भी मैं ध्यान रखूँगी कि वीकनेसेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शायद मुझे कुछ मेरे पैटर्न को या मेरी क्वालिटी को या मेरे तरीक़ों को चेंज करना पड़ेगा या मेरी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा वाइल डूइंग एनी ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्लियर? सो दिस आर द थिंग्स वो एक्चुअल हम लोग नॉर्मली कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, एंड इसका मेन मोटिव यही होता है प्रॉपर राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी वर्क में हम लोग काम करें प्रोडक्शन को वर्क करने के लिए, एंड कस्टमर हमसे प्रॉपर तरीके से फीडबैक दे सके। इफ़ आई एम गेटिंग रॉन्ग फीडबैक ऑल्सो, so don't be that much sad, just work hard for things, so definitely that may change. And the last one, that is known as replanning. As I said, ये replanning comes always into a follow up, but if you want to study, you can study as a separate steps in this also. So replanning हम लोग क्या करते हैं, if in this follow up कुछ चेंजेस करना है, मुझे कुछ करेक्टिव मेजर करना है, तो मैं नॉर्मल यहाँ पे रीप्लानिंग की यहाँ पे कोशिश करूँगी। आई एम मेकिंग श्योर कि मैं रूट्स बनाऊँ, प्रॉपर तरीके से शेड्यूल्स बनाऊँ, ताकि प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को मैं कर सकूँ। मैं मार्केटिंग कंडीशन को ताकि प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग बनाती हूँ। मैं ये भी काम रखती हूँ कि मैं अगर कोई भी मेथड बना रही हूँ या मैं कोई भी काम कर रही हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट है, वो भी मैं ध्यान में नॉर्मली यहाँ पर रखती हूँ। उसी तरीके से मेरा यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर रीप्लानिंग होगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग यहाँ पे फॉलोअप नहीं लेंगे तो प्रॉपर रीप्लानिंग भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। Clear? So these are the total 6 steps which each and every company follow while doing any of the production planning and control. ठीक है? So next lecture we will be doing a next topic. Till then, thank you.